Let's discuss sets. Right. So beta, what is the basic definition of a set, right? Of any set. So any set is basically beta is, let's write this down, is a well defined collection, is a well defined collection of distinct elements. Right beta? So any set is a well defined collection of distinct elements. Right beta? This is the basic definition of sets. Right? So what do you mean by distinct elements? Right? So beta, this means there would be absolutely no repetition. No repetition. Right beta? Elements won't be repeated. Beta, koi element, if you've written that once in a set, you cannot write it again in the same set, right? So we'll write a set without repetition. There will be no repetition in one set, right? So this is what the basic definition means, beta. Ki sets is basically, what is a set? It is basically a well-defined collection of distinct elements, right beta? Distinct means obviously they are different. There is absolutely no repetition between the elements. Clarity? I hope the definition is absolutely clear. इसमें बेटा repetition नहीं होगी. ठीक हो गया? Okay. अब बेटा आपने understand करना है कि in the topic of sets, हम इसमें brackets में बेटा set के जो elements हैं, we write it down in the brackets, right? So बेटा in algebra, we have discussed in opening of brackets. बेटा हमने बहुत सारी brackets discuss की हुई हैं. Quickly let's give it a recap. You call ये brackets कौन सी होती? You call them the round brackets. Round brackets मैं लिख देता हूँ. Round brackets. And बेटा you also call them the parentheses, right बेटा? Parentheses. You also call them the parentheses. But round brackets normally बेटा हम use करते हैं, right? A very common word. And then beta, obviously you have these square brackets. ठीक है? Normally हम जो word use करते हैं, you call them the square brackets. ठीक हो गया? And obviously हम इसको box brackets भी कहते हैं in some of the books. बेटा box brackets भी कहते हैं. But normally usually हम इसको square brackets कहते हैं, right? And बेटा sets में जो हम use करेंगे, we'll use the curly brackets, right? ऐसे करके, right? These are the curly brackets. Curly brackets. Right? Or better, curly brackets ko we also call them the brace brackets. Brace brackets. Right? But normally we'll call them the curly brackets. ठीक हो गया बेटा? So round brackets, square brackets and the curly brackets. Clarity? So in this chapter, beta, a set is always defined, it's written inside a curly bracket. Clarity बेटा, ये बात समझ आ गई? ठीक है? We'll be using these curly brackets. ठीक है? Okay. So number 2. So बेटा, we were discussing a set can be written in two forms. It can be written two ways, right? ये बड़ा important है आपके लिए understand करना. बेटा, one is the tabular form. ठीक है? And the other is the descriptive form. Descriptive form. Right, beta? ठीक है? So questions normally comes in exam. Beta, there are two types of questions that comes in exam in under this topic. Beta, he can give you a question in the tabular form. ठीक है? Or he can give you a question in the descriptive form. Clarity? ठीक हो गया? So what is a tabular form? Beta, I'll give an example. Let's say we have a set A of the first 5, you can say, natural numbers. ठीक है? First 5 natural numbers. Beta, we know natural numbers कहाँ से start होते हैं? 1 से. ठीक है? 0 is not included. So 1, 2, 3, 4 and 5. और ये बेटा आपने curly bracket close कर दी. As we've already discussed, in sets we'll be using the curly brackets. ठीक हो गया बेटा? Curly brackets. ठीक? Okay. What is the descriptive form? So beta, descriptive form
इसी की हो जाएगी. He'll give you a description. So he'll give you the description कि what is set A. So again curly brackets. He'll just write a set of first 5 natural numbers and bracket close, right beta? So you can clearly see tabular means tabulated, the values are given. Table, it's kind of a table, tabulated values, right beta? So descriptive form is where a description in English is given, right? Expressions are given to you and there is a description given to you, so you have to pick the meaning of that set. Clarity? ठीक हो गया बेटा? It's very obvious. ठीक? Set of first 5 natural numbers. So you'll write the set then by yourself कि okay, examiner is talking about this 1 2 3 4 5, and then you'll close the bracket with the curly brackets. ठीक हो गया? Don't forget to close the bracket. So ये बेटा, now this was the second important thing. ठीक? So 2 types of questions would come in exam. Either the question would be in the tabular form or it would be given in the descriptive form. चलो, let's move forward now. Now first important point बेटा, हम डिस्कस करते हैं सबसेट को. Subset, right? Sorry, subset. So what is a subset? Let's say I have a set A. Let's say again first 5 natural numbers. And beta, there is a set B. Let's say it contains some of the elements of set A. Let's say we can say it contains 1, 2, and 5, right? Some of the elements of set A, not all the elements, right? And there is no extra element in set B which is not in set A, right? So set B is what? It contains some of the elements of set A. Clarity beta? Some of the elements, not all the elements. And there is no extra element in set B as well. Clarity? So beta, such a set is known as the subset, right? इसको हम लिख लेते हैं. So what is a subset? Let's write it here. It contains some, but not some को बेटा हम जरा underline कर लेते हैं. It contains some, but not all the elements of the original set. Of the original set. Beta, very simple, very easy. Inshallah, you just listen to this explanation. It is such an easy chapter. आपके fingertips पे होगा inshallah बाद में. No worries at all, right? So what is a subset, beta? Right? So इसका symbol क्या होता है subset का? Now this is very important. Beta, symbol. Because B is a subset of A, right? B contains some of the elements of set A. तो बेटा हम लिखेंगे B. ये बेटा सिंबल होता है जैसे you write a C, right? ठीक हो गया? ये सिंबल होता है सबसेट का. So B is a subset of A, right? B, because it's a smaller set, it is a subset. तो B is a subset of A. ठीक हो गया? And in some of the books वो सबसेट के साथ प्रॉपर सबसेट का वर्ड भी यूज कर लेता है. प्रॉपर सबसेट, बट नॉर्मली सबसेट का वर्ड ही आता है. ठीक है? So B is a proper subset of A, and you can say B is a subset of A. Subset में किसी को कोई बेटा any confusion in subset? ठीक है? Clarity? If there is a smaller set which contains some of the elements of the larger set and no other additional elements, so beta then the smaller set is said to be a subset of the original set, of the larger set, right? और बेटा सबसेट का सिंबल क्या है? मैं ये यहां ड्रॉ कर देता हूं. This is the symbol for the subset, right? ये जैसे हम C लिखते हैं. Clarity? ठीक हो गया बेटा? सिंबल भी हमने डिस्कस कर लिया. इससे ज्यादा कोई डेफिनेशन नहीं है. Let's go to second point. अच्छा बेटा, sometimes there is a word beta in some of the books, this term is very rarely used. Basically improper subset क्या होता है? Improper subset और equal sets एक ही बात है. ठीक है बेटा? Improper subset and equal sets.
ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल होता है बेटा सबसेट का सिंबल बट देयर इज अ लाइन अंडरनीथ, ये होता है इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल। क्लैरिटी? एंड ऑब्वियसली इक्वल सेट्स का सिंबल, इफ टू सेट्स आर इक्वल तो ऑब्वियसली इक्वल सेट्स का सिंबल यही होगा, राइट? क्लैरिटी? सो आई विल राइट दिस, इफ टू सेट्स आर इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ तो बेटा ये सिंबल होगा। आई विल एक्सप्लेन यू दिस, ठीक? व्हाट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज इक्वल सेट्स? But the first thing is first, there is absolutely no difference between an improper subset and equal sets. That is why the term improper subset is very rarely used. ठीक है बेटा? Is very rarely used. Let's say we have a set A, first 4 natural numbers. We have a set B, again of first 4 natural numbers. सो बेटा हम क्या कहेंगे? सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। एंड बिकॉज बेटा सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नॉट सम। अगर सम ऑफ द एलिमेंट्स होते तो फिर प्रॉपर सबसेट होता, राइट? सो सेट बी कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, तो बेटा हम कह देते हैं सेट बी इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ए, राइट? Set B is an improper subset of, not a proper subset, right? Because it contains all the elements of A. ठीक है? So this is an improper subset, and as we've already discussed कि बेटा improper subset and equal sets is exactly the same. So बेटा ये बड़ा rare आता है, it's very rarely used, but anyway concept है, आपको आना चाहिए, you should know this concept, right? और एक चीज बेटा और बुक्स में लिखी होती है, ये भी आप जरा लिख लो, एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक हो गया? लेट्स से अगेन आई हैव अ सेट ए ऑफ फर्स्ट 4 अल्फाबेट्स। अगर यही सेट रिपीट हो जाए बेटा, सेट ए दोबारा रिपीट हो जाए, राइट? क्लैरिटी? सेट ए दोबारा रिपीट हो जाए, सो बेटा बुक्स में लिख देते हैं कि सेट ए इज सेड टू बी एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो रिमेंबर दैट एवरी सेट बेटा, एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सो एवरी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ बिकॉज वही एलिमेंट्स पूरे के पूरे रिपीट हो रहे हैं। इट कैन नॉट बी अ प्रॉपर सबसेट, राइट? बिकॉज फॉर अ सेट टू बी अ प्रॉपर सबसेट हमने डिफाइन किया बेटा, जो एग्जाम्स में बड़ा कॉमन क्वेश्चन आता है, इट हैज टू कंटेन सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल ऑफ द लार्जर सेट। आई होप द डिस्कशन ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट्स एंड इक्वल सेट्स, नाउ दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। क्लैरिटी बेटा? ठीक हो गया, राइट? इक्वल सेट्स भी क्लियर हो गया कि 2 सेट्स आर इक्वल इफ दे कंटेन एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। ठीक है? इफ सेट बी ऑल्सो कंटेन्स the same elements of set A, right? Clarity? चलो ठीक हो गया। इसका सिंबल भी हमने डिस्कस कर लिया, एवरीथिंग इज डिस्कस, ठीक? ओके, इक्वल सेट्स भी हमने देख लिया। इक्वल सेट्स में अगर आपने, चलो इसको, इफ यू वांट टू राइट समथिंग बेशक लिख लो, एवरी बोथ ऑफ देम हैव द सेम एलिमेंट्स, बोथ सेट्स हैव द सेम एलिमेंट्स। चलो क्लैरिटी बेटा? ये इक्वल सेट्स को भी हमने थोड़ा सा डिफाइन कर लिया, नथिंग मोर देन दिस। ओके बेटा, अब जरा हम ये बेटा 2 पॉइंट्स हो गए। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, राइट? अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट ऑलमोस्ट कम्स इन एवरी क्वेश्चन ऑफ सेट्स। व्हाट इज इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन, ठीक बेटा? इंटरसेक्शन कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स, हम लिख लेते हैं जरा इसको, कॉमन एलिमेंट्स। लेट्स से इफ यू हैव 2 सेट्स, ठीक है, सो हम लिख देंगे कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, ऑफ द 2 सेट्स, या मोर देन 2 सेट्स हैं तो कॉमन एलिमेंट्स ऑफ द सेट्स, उसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन, ठीक? और इंटरसेक्शन का बेटा जो सिंबल यूज होता है, ये जैसे हम एन लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन का बेटा सिंबल यूज होता है, राइट?
क्लैरिटी? ठीक हो गया? जैसे हम ये स्मॉल एन लिखते हैं, ये इंटरसेक्शन का सिंबल यूज होता है. ठीक? ओके, आई विल गिव एन एग्जांपल. Let's say you have a set A. So it is a set of first 5 natural numbers. ठीक? I have a set B. Let's say इसमें हम elements ले लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7. Right? So my question is there intersection in two sets, in both the sets? What do you mean by intersection? Common elements of the sets. Yes, 3 is common in both the sets. ठीक है बेटा? 3 is common, 4 is common in both the sets, 5 is common in both the sets. 3, 4, 5 is common in both the sets. So if you want to write A intersection B in this set language, ठीक है बेटा? So set language should be very clear. You should be able to read set language. So how would you read this? A intersection, because अभी हमने डिस्कस किया है, ये बेटा इंटरसेक्शन का सिंबल है. A intersection B means the common elements of the sets. हमने ऊपर डिफाइन कर दिया. So you will just write the curly brackets and you would just simply write the common elements of the two sets. ठीक है बेटा? Because A intersection B में you'll just write the common elements, the elements which are common in both the sets. इसमें कोई डाउट? ये बेटा इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट है, नथिंग मोर देन दैट. क्लैरिटी? ओके, जरा हम 4th पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं. अब लिखो यूनियन. राइट? और यूनियन के बेटा सिंबल होता है जैसे अब यू लिखते हैं. यू स्टैंड्स फॉर यूनियन. ठीक है? यू स्टैंड्स फॉर यूनियन. ठीक है? ओके, सो इसकी मैं बेटा आपको एग्जांपल देता हूं. लेट्स से यू हैव अ सेट ए. Again, first 4 natural numbers. You have a set B, let's say 5, 6, 7, 8. Right? So examiner asks you के write A union B. ठीक है? So what do you mean by union? Simply add the elements of the two sets without repetition. ठीक है? Okay, let's just also add few more elements ताकि जरा और clarity आ जाए. सो मैं इसको जरा और लिख देता हूं. लेट मी जस्ट राइट बेटा 3, 4, 5, 6, 7, 8. चलो, ठीक हो गया? नाउ द क्वेश्चन इज, द एग्जामिनर आस्क यू टू राइट द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स A यूनियन B. फर्स्ट थिंग इज सिंबल शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर. बेटा ये U स्टैंड्स फॉर यूनियन. आपने दोनों सेट्स को यूनाइट कर देना, कंबाइन कर देना विदाउट रेपिटेशन. सो जस्ट सिंपली एड द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स 1, 2, 3, 4. Write down the elements of the two sets without repetition. ठीक है? 3, 4 ऑलरेडी बेटा हमने लिख लिया है. एंड 5, 6, 7, 8. ये बेटा आ गया A यूनियन B. सिंपल. यू जस्ट राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स विदाउट रेपिटेशन. ठीक है? सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन इन सिंपल वर्ड्स. कंबाइन और यूनाइट द एलिमेंट्स of the two sets without repetition. Because बेटा ऑलरेडी हमने इनिशियली सेट्स की बेसिक डेफिनेशन में डिस्कस किया है कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं इन अ सेट. इन अ सेट यू कैन नॉट बेटा, यू कैन नॉट रिपीट द एलिमेंट्स. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. सो यूनियन तो बहुत ही सिंपल है. If a question of union comes of two sets, right? We have a set A, we have a different set B. Simply beta combine, simply unite the elements of the two sets without repetition. Be careful in that. Clarity? ठीक हो? Okay beta. Point number 5. Very important again. Point number 5. What is a null set? Or you can say empty set. बड़े आराम से बेटा इसको डिस्कस करते हैं. राइट? लेट्स से यू हैव सेट ए. फर्स्ट सॉरी बेटा कर्ली ब्रैकेट जरा ध्यान से पुट करनी है. फर्स्ट 4 natural numbers and you have a set B, let's say 5, 6, 7, 8. Examiner asks you for A intersection B. We have already discussed. ये बेटा सिंबल होता है इंटरसेक्शन का. इसमें कोई डाउट किसी को? राइट?
अब बेटा set language should be absolutely clear कि what is examiner trying to ask you. So he's asking you for a set A intersection B. He's asking you to write elements of the set A intersection B. चलो अब जरा मुझे बताओ A intersection B, is there anything common in the two sets? Because intersection means हमने क्या ऊपर डिस्कस किया है? Common elements of the two sets. राइट बेटा, यही होता ना इंटरसेक्शन. चलो मुझे बताओ, इज देयर एनी एलिमेंट कॉमन इन द टू सेट्स? नो. तो ईदर यू विल राइट द एम्प्टी ब्रैकेट्स, ठीक है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. और बेटा इसमें एक साइन, एक सिंबल होता है विच वी कॉल अ सिंबल. इसमें बेटा ये जैसे ओवल साइन पुट करके जस्ट पुट अ लाइन ऑन दैट, इसको हम नॉर्मली द डिफरेंट नेम्स हम फाइव भी कहते हैं, बट ये सिंबल ईदर यू यूज दिस और दिस, ठीक है. इफ यू पुट अ ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, और इसके बीच में आप ये सिंबल पुट कर दोगे, दिस इज रॉन्ग. दिस मीन्स देर इज एन एलिमेंट इन साइड द ब्रैकेट. सो ईदर यू पुट द एम्प्टी ब्रैकेट्स, दैट मीन्स देर इज एब्सोल्युटली नो एलिमेंट कॉमन इन बोथ द सेट्स. ये भी नल सेट के लिए यूज होता है, राइट, बिकॉज देर इज नो एलिमेंट कॉमन. सो बेसिकली इट्स अ नल सेट, और यू कैन से इट्स एन एम्प्टी सेट, राइट. सो या तो एम्प्टी ब्रैकेट्स दे दो बेटा, ठीक है, और यू कैन गिव दिस सिंबल, ठीक है, दोनों में से एक. आई होप दिस इज क्लियर. सो नल सेट की डेफिनेशन क्लैरिटी बेटा. लेट्स डिस्कस व्हेन डायग्राम्स, ठीक है जी बेटा, व्हेन डायग्राम्स. अच्छा बेटा, बेसिकली डायग्राम्स लिख लो जरा. डायग्राम्स दैट शोज बेटा लॉजिकल रिलेशन between the sets, ठीक. वेरी सिंपल. दैट बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डायग्राम्स दैट शोज द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द सेट्स, राइट बेटा. और इसके लिए नॉर्मली हम जो बेटा डायग्राम्स यूज करते हैं, जो फिगर्स हम यूज करते हैं, अ रेक्टेंगल, ठीक, इसमें हम पे डिफरेंट एलिमेंट्स हम प्लेस कर देते हैं, ठीक है. अ रेक्टेंगल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट. देन बेटा एन ओवल और अ सर्कल इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट, और इसमें बेटा हम एलिमेंट्स प्लेस कर देते हैं बेटा, राइट. अ ट्रायंगल कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ सेट, ठीक है. ऑल दीज डायग्राम्स बेटा कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट सेट्स, ठीक है. आई विल गिव एन एग्जांपल. For example, well, let's take this set A, and let's say we have again first 5 natural numbers beta. Let's say we have a set B, हम ले लेते हैं 4, 5, 6, 7 and 8, right beta? So we have to represent this on a Venn diagram A intersection B, ठीक. So beta, this is set A. Let's say this is set A. Because there is intersection, some of the elements are common, ठीक है बेटा, are between the sets. So हम बेटा overlapping sets बनाएंगे, ठीक है, ये intersection होती है. So we'll just write this is set A, this is set B, and the common in both the sets बेटा यहाँ पर आएगा, ये हम यहाँ पर represent करेंगे 4 and 5, ठीक है. बाकी set A के remaining elements क्या हो जाएंगे 1, 2, 3. So set A में 4, 5 भी contain कर रहे हैं, और सेट बी के रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से होंगे 4, 5 ऑलरेडी सेट बी में बेटा हमने मेंशन कर दिए. ओनली बी में 6, 7, 8 आ जाएंगे, ठीक है. दैट इज हाउ यू यूज द वेन डायग्राम्स. क्लैरिटी, ठीक है. सो बेटा दिस इज अ गुड एग्जांपल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. सो हमने ए इंटरसेक्शन बी जो कॉमन एलिमेंट्स हैं बेटा वो हमने यहां लिख दिया, राइट. और बेटा जनरली लेट्स से यू टेक 2 सर्कल्स एंड यू मेक अनदर सर्कल, राइट. और बेटा अगर आप इसको लेबल कर दें, दिस इज सेट ए एंड सेट बी. सो इफ द एग्जामिनर सेज शेड ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, तो आप कौन सा रीजन शेड करोगे बताओ जी बेटा. ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा रीजन आप शेड करोगे? सो इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स, द ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द टू सेट्स, द कॉमन इन द टू सेट्स, ये बेटा होगा ए इंटरसेक्शन बी का. If you represent this in a form of a Venn diagram. इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? ठीक है, इसी को बेटा हम ले लेते हैं. Let's say again you have, let's say 2 sets. Let's say बेटा you have 2 sets. ठीक हो गया. And this time examiners ask you to shade
ए यूनियन बी, राइट? सो बेटा व्हाट डू यू मीन बाय ए यूनियन बी? हमने इनिशियल डेफिनेशन में डिस्कस किया था, सिंपली कंबाइन द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स, राइट? सो बेटा शेडिंग क्या होगी ए यूनियन बी में? यू जस्ट सिंपली add the two sets, you just simply combine the two sets. तो बेटा A भी complete आएगा, let's say this is A and this is B, so बेटा A भी complete आएगा, right? और set B भी complete आएगा, right? So union तो सबसे easy है बेटा शेड करना, whatever the sets are जिनका union है, you just simply combine the two sets और आप उनको शेड कर दो. Clarity बेटा? तो हमने यूनियन की शेडिंग भी कर ली और इंटरसेक्शन की शेडिंग भी कर ली, बट इज ऑल्सो नोन एज ओवरलैपिंग सेट्स, ठीक है? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन रीजन ऑफ द टू सेट्स. क्लैरिटी बेटा? ओके बेटा, सबसेट की भी एग्जांपल कर लेते हैं. जरा इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अ प्रॉपर सबसेट या हम सिर्फ सिंपल सबसेट कह दें, ठीक है बेटा? सो अगेन लेट्स से हम इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं. लेट्स से वी मेक बेटा टू सर्कल्स. अगेन हम बेटा एक सर्कल ये ले लेते हैं, ठीक, राइट? एंड ऑब्वियसली दिस इज द बिगर सेट. जो सबसेट होगा बेटा वो इसको कंटेन करेगा, बिकॉज द सबसेट इज पार्ट इज ऑफ द लार्जर सेट, बिकॉज सम ऑफ द एलिमेंट्स आर कंटेन्ड फ्रॉम द लार्जर सेट, राइट बेटा? तो सबसेट की ये रिप्रेजेंटेशन होगी, राइट? सो वी कैन से दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो बेटा B जो है, B इज अ सबसेट ऑफ E, ठीक है बेटा? B इज अ सबसेट ऑफ E. ये बेटा बड़े ध्यान से देखना है, ये सबसेट बड़े कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज लेट्स से सेट A में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, राइट बेटा? सेट B हैज एलिमेंट्स लेट्स से 4 and 5 फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो ऑब्वियसली B is a subset of A, right beta? B is a subset of A. Clarity? B contains some of the elements of set A. कोई extra element नहीं है. Clarity? ठीक हो गया ना? So हम कैसे set B के क्या elements है? 4 and 5. And obviously it is a part of the bigger group. Set B is a portion of the bigger set. Clarity? सो बेटा सेट ए के एलिमेंट्स आप क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी आपने, बिकॉज ये सेट ए में भी तो आ रहा है ना बी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है. तो जो बेटा कंटेन करता है लार्जर सेट वो आउटसाइड और जो स्मॉलर सेट है वो इनसाइड. द सबसेट इज ऑलवेज ड्रॉन इनसाइड द बिगर सेट. क्लैरिटी बेटा? ठीक हो गया. अच्छा, अब जिसके क्वेश्चंस आते हैं, सो ये बड़ा ध्यान से बेटा आपने देखना है. लेट्स से अगेन आपको लेट्स ड्रॉ फर्स्ट टू सर्कल्स. ये बेटा लार्जर सेट एंड लेट्स से दिस द स्मॉलर सेट. ठीक हो गया. हम इसको लेबल कर देते हैं वंस अगेन सेट ए एंड सेट बी. सो एग्जामिनर कहता है शेड, बड़े ध्यान से आपने देखना है बेटा, शेड ए इंटरसेक्शन बी, राइट? शेड ए इंटरसेक्शन बी. अब हम वेन डायग्राम्स को बेटा डिस्कस कर रहे हैं. That means the common region of the two sets, or you can say the overlapping region, the overlapping area. ठीक है. जरा मुझे बताओ इन दोनों सेट्स में, बिकॉज वी कैन क्लियरली सी कि B is a subset of A. यही बनेगा ना वेन डायग्राम बेटा. क्लैरिटी? बिकॉज A is the bigger set, वो कंटेन कर रहा है सेट B को. ठीक है. B has fewer elements from set A, from this bigger set A. Clarity? Chalo. So how would you shade this beta? What do you mean by A intersection B? ठीक है. When you say A intersection B, that means the common elements of the two sets, or you can say the common area of the two sets. What do you mean by common area? The overlapping area. Right beta? The overlapping area. इसमें कोई डाउट? तो मुझे बताओ overlapping area कौन सा है इसमें? What is the overlapping area? ये सारा overlapping area, ये जो मैंने शेड किया है, this is the overlapping area. इसमें कोई डाउट किसी को? ये जो इनर सर्कल है, दिस इज द ओवरलैपिंग एरिया विच इज पार्ट ऑफ द बी में भी है और ऑब्वियसली बिगर सेट का भी पार्ट है. दोनों सेट्स यहां पर ओवरलैप कर रहे हैं. तो इन अ सबसेट बेटा रिमेंबर दैट ए इंटरसेक्शन भी इस तरह शेड करेंगे. ठीक है. हम यूनियन की भी एग्जांपल ले लेते हैं.
let's say again, let's draw two circles, one, और let's say we draw a subset as well. ठीक है जी? तो बेटा हम इसको लेबल कर देते again. Let's say this is set A and this is set B, right? So we can clearly see, तो बेटा we can clearly see that set B is a subset of A. इसमें कोई डाउट? ठीक है? Set B is a subset of A. Now if the examiners ask you to बेटा shade A union B, अब जरा मुझे बताओ हमने यूनियन का क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ बेटा शेडिंग में? सिंपली कंबाइन द टू सेट्स, सिंपली ऐड द टू सेट्स, यूनाइट द टू सेट्स. तो बेटा इसकी शेडिंग क्या हो जाएगी? आप बेटा सिंपली दोनों सेट्स को शेड कर देंगे. यूनियन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है. सिंपली शेड द टू सेट्स. इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? दैट इज द शेडिंग ऑफ ए यूनियन बी. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट बेटा? अच्छा बेटा, देन वी हैव बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, और यू कैन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, राइट? ये भी बेटा एग्जाम्स में आ जाता है, राइट? सो आई विल ट्राई टू शो यू विद द हेल्प ऑफ अ वेन डायग्राम. बेटा पहले तो मुझे बताओ इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय डिसजॉइंट सेट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स? Disjoint sets, as the beta word suggests, let's say you have two sets, beta उनका intersection is a null set. That means there is no element common in the two sets. ठीक है? इसको हम कहते हैं disjoint sets या mutually exclusive sets, जिसमें कोई element common ना हो. चलो अब मुझे बताओ, we have done enough practice कि if you draw a Venn diagram, चलो हम ये बेटा Venn diagram बना लेते हैं. Let's say you draw a rectangle, राइट बेटा, और आप ये दो सेट्स ड्रॉ करते हैं, राइट? यू ड्रॉ द टू सेट्स. इसको हम लेबल कर लेते हैं, लेट्स से दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी. तो कोई ओवरलैपिंग हो रही है? आपको कोई ओवरलैपिंग, कोई कॉमन एरिया नजर आ रहा है दोनों में? नो. सो दीज टू सेट्स, बाय जस्ट लुकिंग एट दिस वेन डायग्राम, बेटा आप कह सकते हो कि दीज टू सेट्स आर व्हाट? डिसजॉइंट सेट्स या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स, जिनमें देर इज नो एलिमेंट कॉमन. ठीक है? उनका इंटरसेक्शन इज अ नल सेट, या यू कैन ऑल्सो शो दिस इन द फॉर्म ऑफ एन एम्प्टी ब्रैकेट्स, जो कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं. ठीक है? क्लैरिटी बेटा? अच्छा, अब एग्जामिनर अगर आपको कह दे, इट्स लेट्स से आपको ये वेन डायग्राम एग्जाम में गिवन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स का, एंड एग्जामिनर आस्क्स यू टू शेड लेट्स से ए इंटरसेक्शन बी. सो आप क्या शेड करोगे? मुझे बताओ, सोच के बताओ, आप इसमें से क्या एरिया शेड करोगे? इफ दिस क्वेश्चन कम्स इन एग्जाम्स, इज देयर एनी एरिया कॉमन इन बोथ द सेट्स? बिकॉज इंटरसेक्शन का मतलब तो हमने डिस्कस किया ना बेटा, ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग रीजन. सो ओवरलैपिंग रीजन तो कोई है नहीं, देयर इज नथिंग कॉमन इन बोथ द सेट्स. तो बेटा यू लीव द सेट एज इट इज, बिकॉज आप कुछ भी शेड नहीं कर सकते. ठीक है? यूल गेट मार्क फॉर दैट. एंड लेट्स से आपको, लेट्स मेक अ फिगर अगेन, हम इसी को जरा जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं बेटा. ओके, एंड लेट्स से अगेन यू ड्रॉ टू सेट्स, राइट? और इनको बेटा हम लेबल कर लेते हैं अगेन सेट ए एंड बी. नाउ इफ द एग्जामिनर सेज शेड ए यूनियन बी, अब आप कौन सा एरिया शेड करोगे जरा मुझे बताओ? बिकॉज यूनियन का मतलब है सिंपल कंबाइन द टू सेट्स. तो बेटा सेट ए भी पूरा आएगा और सेट बी भी पूरा शेड होगा. ठीक है? यूनियन की शेडिंग सबसे सिंपल है, जस्ट सिंपली कंबाइन द टू सेट्स. ठीक है? क्लैरिटी बेटा? यूनाइट द टू सेट्स, उनको आपने शेड कर देना है. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. ठीक है? ये बेटा एक एग्जांपल थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट्स की. क्लैरिटी बेटा? अच्छा चलो एक हेडिंग दे लो, ओवरलैपिंग सेट्स, जो कि इंटरसेक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बट इसको चलो लिखना है तो थोड़ा सा लिख लो, ओवरलैपिंग सेट्स, ओवरलैपिंग सेट्स. जस्ट राइट दिस डाउन, दो लाइन्स है. क्या लिखें? विच हैव, सिंपल वर्ड्स में लिख लो, सेट्स विच हैव एटलीस्ट one element
सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, ठीक है बेटा, एंड ऑब्वियसली नो वन इज अ सबसेट ऑफ द अदर, एंड नो वन, राइट बेटा, एंड नो वन इज सबसेट ऑफ द अदर, राइट बेटा। इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट्स नॉर्मली, ठीक है। सबसेट को तो हमने प्रॉपर्ली डिफाइन किया ना, लेकिन जो ओवरलैप कहते हैं, जो इंटरसेक्शन के लिए नॉर्मली हम यूज करते हैं, सो दिस टर्म शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर, ठीक है, विच हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन, राइट बेटा। और सबसेट्स के साथ इसको मिक्स नहीं करना, ओवरलैपिंग सेट्स को। लेट्स से ओवरलैपिंग सेट्स की एग्जांपल हम एक दफा फिर देख लेते हैं। लेट्स से यू ड्रॉ बेटा, लेट्स से वी ड्रॉ, कोई हमारे पास बिगर सेट है, राइट, and then you have, let's say, two sets and you can label them. Let's say this is set A and set B, right, and we can see overlapping sets है क्योंकि इसमें there is an area जो overlap कर रहा है, common region है। Let's say examiner asks you to shade beta, shade A intersection B। चलो, what do you mean by intersection? Again the common region, तो आप कौन सा रीजन शेड करोगे? ये वाला ए एंड बी का जो कॉमन रीजन है, इसमें कोई डाउट, ठीक है। एंड लेट्स से हम इसको जरा ड्रॉ कर लेते हैं, एक और सिमिलर डायग्राम, ठीक है बेटा। और लेट्स से वी लेबल दिस बेटा ए एंड बी, ठीक, एंड एग्जामिनर आस्क्स यू टू शेड अगेन ए यूनियन बी, राइट। सो ए यूनियन बी में क्या शेड करोगे? ए एंड बी की बात हो रही है, सो ए यूनियन बी में क्या शेड करोगे? अगेन सेट ए यूनाइट्स विद सेट बी, कंप्लीट सेट ए एंड कंप्लीट सेट बी। दिस इज सो सिंपल। आई होप बेटा ये बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हमने बेटा सारी डिस्कशंस कर ली हैं, एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि कोई कॉन्सेप्ट इज नॉट लेफ्ट बिहाइंड। क्लैरिटी? ओके बेटा, लास्ट 2 पॉइंट्स जरा देख लेते हैं। सो व्हाट इज द सेकंड लास्ट पॉइंट बेटा? यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये बेटा सिंबल आपके माइंड में होना चाहिए, राइट। सो व्हाट इज अ यूनिवर्सल सेट बेटा? इसको जरा लिख लेते हैं बेटा, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स under discussion, ठीक है बेटा, और under consideration, राइट बेटा, ठीक हो गया। I'll give an example. Let's say I take the universal set of first 10 natural numbers, 1 2 3 4, और बेटा हम डॉट 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 लगा के एंड पे 10 लिख देंगे। दिस मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बेटा ये लैंग्वेज से आप यू हैव टू बी वेरी फेमिलियर। सो दिस मीन्स कंटिन्यू हो रही वैल्यूज, नंबर्स आर कंटिन्यूइंग टिल 10, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, राइट बेटा। लेट्स से आई हैव अ सेट ए, राइट। सो बेसिकली आई in my mind the bigger set, the universal set is this, right? So जितनी भी मैं अब बेटा डिस्कशन करूंगा, it would be around this universal set. So the sets I would take जो generate होंगे, they would be from the universal set, right? Let's say I take set A, set of first 5 natural numbers, 1 2 3 4 5. Let's say I take set B, ठीक है, 3 4 5 6. Let's say I take another set C, 6 7 8 9 10, राइट बेटा, ठीक हो गया। लेट्स से मैं आपसे कहता हूं राइट डाउन द सेट A इंटरसेक्शन B, तो बेटा वी कैन क्लियरली सी सेट A B C, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द बिगर सेट, द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। सो बेटा रिमेंबर दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्सल सेट? Set of all elements under discussion at that moment in that question, that will be your universal set, like the biggest set जिसमें से बाकी sets generate हो रहे हैं। और under consideration, let's say I said set of fruits,
ठीक है, लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ फ्रूट्स, तो जो सेट ऑफ फ्रूट्स होगा, नाउ दिस विल बी द यूनिवर्सल सेट, दिस इज द बिगर लार्जर सेट, राइट? ठीक है, चलो, सो इफ यू से लेट्स से व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो बेटा हम क्या लिखेंगे एलिमेंट्स? ऑब्वियसली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स, द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सेट्स। सो ए और बी में क्या कॉमन है बेटा? 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो यू जस्ट सिंपली राइट 3, 4 एंड 5, और ये आपने बेटा कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज कर देने। लेट्स से आई आस्क यू टू राइट डाउन द सेट ए इंटरसेक्शन सी, तो बेटा व्हाट इज ए इंटरसेक्शन सी? इज देयर एनीथिंग कॉमन इन द टू सेट्स? तो आप लिखेंगे नो, देयर इज नथिंग कॉमन, तो जस्ट राइट, गिव द एम्प्टी ब्रैकेट्स, और you can give this symbol of fire, right? An oval with a line. So both are correct. Don't write, I already discussed beta, curly brackets, and you just put a symbol in that. This is wrong. This means you have an element in that. ठीक है? You have an element in that. ठीक हो गया? curly brackets को बेटा जरा ध्यान से पुट करना है। इसमें कोई डाउट किसी को? ठीक हो गया? Clarity? चलो, so universal set का concept clear? कि set of all elements under discussion or under consideration. Last point beta, that is complementary set. Complementary set, and I think very very important, इसकी importance बहुत ज्यादा बेटा, ठीक है? So बेटा complementary set कहते हैं, in simple terms बेटा कहते हैं कि सेट बेटा यूनिवर्सल सेट, लिख लो जरा, यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग दैट सेट, ओके बेटा, I'll give you an example. So let's say बेटा you have a universal set, once again elements बेटा हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Let's say you have set A and you have the elements 1 2 3 4, right? और बेटा कॉम्प्लीमेंट के लिए जो कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए जो सिंबल होता है, दैट इज अ सेट, उसके ऊपर ये बेटा डैश या प्राइम का सिंबल होता है, ठीक? दिस सिंबल शोज ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है? क्लैरिटी? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक? सेट ए को इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, बट इफ यू पुट अ लाइन स्मॉल हैश ऑन दैट लेटर, तो बेटा ये कॉम्प्लीमेंट को ये शो करेगा, राइट? तो ए कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट होगा बेटा? हमने क्या डिफाइन किया? द यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग दैट सेट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू सिंपली एक्सक्लूड द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है? एंड यू जस्ट राइट डाउन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट, ठीक है? एक्सक्लूडिंग सेट ए फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट इन सिंपल टर्म्स। तो हम सेट ए को एक्सक्लूड कर देंगे, व्हाट इज लेफ्ट? 5 6 7 8, ये बेटा होता है कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ए कॉम्प्लीमेंट, राइट? लेट्स से यू हैव अ सेट बी 6 7 8 एंड यू नीड टू राइट बी कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा मुझे बताओ बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब एक्सेप्ट सेट बी, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग सेट बी। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है? 6 7 8 आपने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये बेटा रिमेनिंग यूनिवर्सल सेट आपके पास आ गया, सो एक्सेप्ट सेट बी आपके पास आ गया। तो एक चीज नोट करो बेटा, सेट की इंटरसेक्शन विद इट्स कॉम्प्लीमेंट्री सेट इज ऑलवेज अ नल सेट, बिकॉज देयर वुड बी ऑलवेज नथिंग इन कॉमन, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री सेट का मतलब ही यही है कि एक्सक्लूडिंग दैट सेट फ्रॉम द यूनिवर्सल सेट, ठीक है? सो सिमिलरली बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इट विल बी अ नल सेट। कॉम्प्लीमेंट्री सेट की बेटा डेफिनेशन क्लियर? इसमें कोई डाउट? ठीक हो गया? ये बेटा आपका सेट्स का सारा कॉन्सेप्ट था। देयर इज नथिंग लेफ्ट। लेट्स लुक एट फ्यू क्वेश्चंस। जरा हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट की शेडिंग कैसे आती है। अच्छा जस्ट अ सेकंड बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री सेट में एक छोटा सा एक बेटा लॉ याद रखो बिफोर वी मूव ऑन टू द शेडिंग। बेटा दिस इज नॉन एज द डे मॉर्गन्स लॉ। डे मॉर्गन्स लॉ बेटा ये लॉ क्या सजेस्ट कर रहा है? दिस इज वेरी हेल्पफुल इन शेडिंग द वेन डायग्राम्स। ठीक है, डे मॉर्गन्स लॉ बेटा ये शेड करता है, इट बेसिकली सिंप्लीफाइज
द कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास कोई आ जाए सिंबल्स, ठीक है. सो लेट्स से आपके पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ जाए, राइट. सो बेटा व्हाट डज डे मॉर्गन्स लॉ स्टेट? ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स में चेंज हो जाएगा और साइन रिवर्स हो जाएगा. यूनियन था तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सिमिलरली आपके पास अगर आ जाए ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा ये किस में ब्रेक हो जाएगा? इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स में, और साइन रिवर्स हो जाएगा. इंटरसेक्शन से क्या हो जाएगा? यूनियन में. प्लीज रिमेंबर दैट. ठीक है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट. इफ यू ओपन द ब्रैकेट्स तो डे मॉर्गन्स लॉ ये स्टेट करता है बेटा सेट्स में कि इंडिविजुअल पे कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन का साइन रिवर्स हो जाएगा. सो इट दिस इज बेसिकली ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. और अगर आपके पास आ जाए लेट्स से ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो बेटा ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. सो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. तो बेटा प्लीज रिमेंबर दिस. ये आगे हम जो अब शेडिंग डिस्कस करेंगे, दिस इज वेरी यूजफुल इन दैट. ठीक हो गया? क्लैरिटी? ओके बेटा, लेट्स डिस्कस दिस. अब ये बड़े ध्यान से बेटा अपने कॉम्प्लीमेंट्री सेट्स की शेडिंग देखनी है. सो व्हाट इज द एग्जामिनर सेइंग बेटा? शेड ए कॉम्प्लीमेंट. सो बेटा कॉम्प्लीमेंट की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है कि होल ऑफ द यूनिवर्सल सेट एक्सक्लूडिंग दैट सेट. ठीक है, ठीक हो गया बेटा. सो यूनिवर्सल सेट हमें गिवन है, द बिगर सेट इज द यूनिवर्सल सेट, राइट. सो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, अदर देन दैट सेट. So you just leave set A and you shade the remaining part of the universal set. ये बेटा आपने शेड कर दिया A complement. इसमें कोई डाउट किसी को? तो बेटा definition of complement should be very clear. What is a complement of a set? Other than that set. ठीक है बेटा, other than that set. उसमें वो set include नहीं होगा. ठीक है, that set will not. A complement simply means except A, right? Everything except A, excluding A. ठीक है बेटा. तो जब भी शेडिंग आएगी बेटा कॉम्प्लीमेंट की, दैट मीन्स you will not include that set. I hope this is absolutely clear. ठीक है. So A complement means except set A. You shade everything. Clarity? ये हमने बड़ी थॉरो डिस्कशन कर ली है. अच्छा बेटा, नाउ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट कम्स इन एग्जाम्स. एग्जामिनर सेज बेटा शेड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट बेटा? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. एंड इंटरसेक्शन मींस बेटा ओवरलैपिंग रीजन या कॉमन रीजन ऑफ बोथ सेट्स. ठीक है बेटा, ऑफ बोथ सेट्स. सो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, पहले तो मुझे बताओ व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट. लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द सेट. सेट ए तो बिल्कुल ऑब्वियस है, वी कैन सी सेट ए. बट व्हाट अबाउट द अदर सेट? बी कॉम्प्लीमेंट कौन सा सेट है? बी कॉम्प्लीमेंट मींस बेटा एक्सेप्ट सेट बी, ये जो हमने ऊपर शेड किया है, राइट? सो एक्सेप्ट दैट सेट, एवरीथिंग इनसाइड दैट यूनिवर्सल सेट इज शेडेड. तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक्सेप्ट बी एवरीथिंग इज शेडेड, राइट? इसमें सेट ए भी आ गया बट बी का कोई पार्ट नहीं आया, राइट बेटा? नथिंग फ्रॉम द पार्ट बी. तो कॉमन रीजन ऑफ बोथ द सेट्स बेटा क्या होगा? ओनली दिस. कॉमन रीजन ऑफ बोथ द सेट्स क्या होगा? ओनली दिस. ठीक है, बिकॉज लेट मी शो यू हियर. लेट्स से आई जस्ट सिंपली ड्रॉ सेट बी. लेट्स से आई जस्ट सिंपली ड्रॉ सेट बी. तो मुझे जरा बताओ शेड बी कॉम्प्लीमेंट. व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? तो बेटा आप क्या शेड करोगे? एक्सेप्ट बी यू विल शेड एवरीथिंग. ठीक है, एक्सेप्ट बी. बड़े ध्यान से बेटा आपने अंडरस्टैंड करना, इट्स वेरी इजी. एक्सेप्ट बी आप सब कुछ शेड कर देंगे, ऐसे ही है. दैट इज व्हाट यू विल शेड बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये सेट बेटा आपके माइंड में होना चाहिए व्हेन यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. सो व्हाट इज बी कॉम्प्लीमेंट? वो ये सेट है, ये शेडेड एरिया, दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट. तो अब मुझे बताओ अगर इधर एक और सर्कल है, सो ऑब्वियसली दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ दिस बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ठीक हो गया ना? बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है एक्सेप्ट सेट बी एवरीथिंग. सो बेटा ये मैं येलो में मार्क करता हूं.
लेट मी बल्कि इसको येलो से बेटा मार्क करते हैं. सो मुझे बताओ, इफ आई शेड बी कॉम्प्लीमेंट, सो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ये सारा एरिया शेड होगा एक्सेप्ट सेट बी. आंसर वही है जो मैंने ग्रीन से शेड किया. आई एम जस्ट टेलिंग यू. ठीक, एक्सेप्ट सेट बी आप सब कुछ शेड कर देंगे, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट? ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट ये जो मैंने येलो से शेड किया, ठीक, बी कॉम्प्लीमेंट बेटा जो सेट मैंने येलो से शेड किया, राइट? इसमें कोई डाउट? ओवरलैपिंग रीजन, द पार्ट विच इज ओवरलैपिंग विद सेट ए, दैट इज द पार्ट जो मैंने ग्रीन से शेड किया. जो बी कॉम्प्लीमेंट का बेटा पार्ट एरिया ओवरलैप कर रहा है सेट ए से, वो इसका आंसर होगा. बिकॉज ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कॉमन एरिया ऑफ द टू सेट्स, कॉमन रीजन ऑफ द टू सेट्स. तो बी कॉम्प्लीमेंट जो मैंने येलो से शेड किया, राइट बेटा, और उसका ओवरलैपिंग रीजन आप लेने ना विद द सेट ए. तो सेट ए से सिर्फ कौन सा ओवरलैप कर रहे हैं? वो जो मैंने ग्रीन से मार्क किया था. लेट मी मार्क दिस अगेन. ये मैं दोबारा मार्क कर देता हूं बिकॉज बेटा अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसमें इसके बाद कोई ऐसी एज सच इसमें कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है. इसमें आई डोंट नो, नॉर्मली स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एंड द ओनली रीजन इज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता. ठीक है, सो लेट्स अगेन मार्क द सेम. बेटा लेबल कर लेते हैं ए एंड बी. सो द क्वेश्चन इज शेड ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, सेम क्वेश्चन, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. तो बी कॉम्प्लीमेंट बेटा वही ऊपर जो एक्सेप्ट सेट बी मैंने पूरा शेड किया हुआ. अब ये आपके माइंड में होना चाहिए, ए का भी रीजन आ रहा है उसमें, राइट? बी कॉम्प्लीमेंट को अगर शेड करेंगे तो ऑब्वियसली ए का भी रीजन आ रहा है ना. इंटरसेक्शन मींस कॉमन ओवरलैपिंग रीजन ऑफ द टू सेट्स. तो बेटा वो सिर्फ ये सेट होगा. इसमें कोई डाउट किसी को? एनी क्वेश्चंस? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, राइट बेटा? ठीक हो गया. बी कॉम्प्लीमेंट का मैंने मतलब बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया. दैट रीजन शुड बी इन योर माइंड. उसमें ये ए का एरिया भी आएगा और यही ओवरलैप करेगा विद ए, राइट? ऊपर हमने इसको डिस्कस कर लिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके बेटा, शेड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट? किसी का भी कॉम्प्लीमेंट आ जाए. अब तो बेटा हमने बड़ी थॉरो डिस्कशंस कर ली है व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट. बट एनीवे, शेड ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. बेटा यूनियन के अंदर it's very simple to shade union questions क्योंकि you just have to add the two sets. ठीक है, तो बेटा पहले हम B complement shade कर लेते हैं. What is B complement? Except set B. Set B के अलावा बेटा whatever is left you just simply shade that. ठीक है, ये आप सारा शेड कर देंगे. ये आपके पास आ गया बेटा B complement. ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को? ऑलरेडी हमने बी कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट बेटा ऊपर डिस्कस किया है. बट नाउ देयर इज अ ट्विस्ट. यूनियन के अंदर बेटा देयर इज अ ट्विस्ट. यू हैव टू बी रियली केयरफुल. और वो ट्विस्ट क्या है कि बी कॉम्प्लीमेंट तो आपने शेड कर दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. दिस इज परफेक्टली फाइन. ऑलरेडी हमने थॉरो डिस्कशंस कर लिए हैं. बी कॉम्प्लीमेंट यही होगा. क्लैरिटी? नाउ वी आर डन विद बी कॉम्प्लीमेंट. क्लैरिटी? अब हमने आगे मूव ऑन करना है. यूनियन मीन्स यू हैव टू एड, यू हैव टू यूनाइट कंप्लीट सेट ए. ठीक, बी यूनियन यही होगा. अब इसमें जो नॉर्मल कंफ्यूजन आती है, राइट, इसमें जो बेटा कंफ्यूजन आती है वो यही आती है जो मैं डिस्कस करने लगा हूं. बी कॉम्प्लीमेंट आपने शेड कर लिया, यू आर डन विद बी कॉम्प्लीमेंट. नाउ वी हैव टू मूव ऑन टू सेट ए. मुझे बताओ बेटा सेट ए हमने कंप्लीट शेड किया? नो. सो बेटा हम सेट ए कंप्लीट शेड करेंगे. नाउ द कंफ्यूजन इज, आप बेटा यूल आस्क दिस क्वेश्चन कि सर वो तो बी कॉम्प्लीमेंट था. बी कॉम्प्लीमेंट का तो मतलब है कि यू कैन नॉट एड एनी रीजन फ्रॉम सेट बी, यू कैन नॉट इंक्लूड एनी रीजन फ्रॉम सेट बी. तो बेटा हमने सेट बी में से इनिशियली कोई रीजन इंक्लूड नहीं किया था. इनिशियल जो मैंने शेडिंग की थी, मैंने बी कॉम्प्लीमेंट को पहले शेड किया था, राइट? एंड देन बिकॉज यूनियन का मतलब होता है सिंपली कंबाइन द अदर सेट. तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट. ये कॉमन मिस्टेक होती है, कॉमन कंफ्यूजन होती है. जस्ट रिमेंबर दिस इन यूनियन.
बी कॉम्प्लीमेंट वही था जो आपका अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, नथिंग फ्रॉम सेट बी। बट जब हम यूनाइट करेंगे बेटा, जब हम ऐड करेंगे अदर सेट, तो सेट ए तो ऐड होगा ना, कंप्लीट सेट ए। तो दिस इज सेट ए जो मैंने ऐड किया बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। इसको आपने मिक्स नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना जी, बी का तो रीजन आ रहा है, राइट। बी कॉम्प्लीमेंट आपने शेड कर लिया, ना मूव ऑन, ठीक है। सेट ए कंप्लीट आएगा, तो बेटा प्लीज रिमेंबर दैट ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में बी कॉम्प्लीमेंट तो वी अंडरस्टूड, ठीक है, एक्सेप्ट बी, लेकिन सेट ए कंप्लीट आएगा। दैट मींस बी कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट एंड सेट ए ऑल्सो कंप्लीट, ठीक है। इसमें ये वाला रीजन इंक्लूड होगा। आई होप आई एम एब्सोल्युटली क्लियर। Okay, but now let's take a look at this Venn diagram. ठीक? There's a universal set and obviously there are some numbers written. Let's read the information. A universal set को क्या define किया हुआ? Boys in year 10. Okay, so it's a batch of basically in a school of year 10 students. Perfectly fine. So we are under consideration बेटा जो आपका इस वक्त यूनिवर्सल सेट है या अंडर कंसिडरेशन जो स्टूडेंट्स हैं, दे आर बॉयज ऑफ ईयर 10। क्लैरिटी, अब ये सिर्फ हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, नॉट द रेस्ट ऑफ द स्कूल। दिस इज योर यूनिवर्सल सेट एट द मोमेंट। इसमें से हम सारी डिस्कशंस करेंगे। क्लैरिटी, ओके। आर इज व्हाट वी कैन सी बेटा, आर लिखा हुआ है, इट्स मेंशन्ड in the Venn diagram. So are members of the rugby team, okay. C is what, members of the cricket team. Okay beta, so let's read the question. So how many are there in the rugby team? ठीक है बेटा, how many are there in the rugby team? So okay, let's look at the Venn diagram. So universal set obviously बेटा boys of year 10, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। R is the members of rugby team. So R is the complete set. तो रग्बी टीम कंप्लीट के बेटा कितने मेंबर्स हैं? 4+5, राइट। सिमिलरली क्रिकेट टीम के कितने मेंबर्स हैं? 2, दे ओनली प्ले क्रिकेट, बट 5 ऑफ देम हु प्ले क्रिकेट एंड ऑल्सो रग्बी, बिकॉज 5 आर द कॉमन इन बोथ द सेट्स, राइट बेटा, ठीक है। सो सिमिलरली रग्बी में ओनली रग्बी दे प्ले 4 स्टूडेंट्स, बट देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ द स्पोर्ट्स, रग्बी एंड क्रिकेट, राइट। सो व्हेन यू सिंपली से रग्बी के कितने स्टूडेंट्स हैं, right, how many are there in the rugby team? So beta obviously the complete set 4 + 5, इसमें कोई doubt, so 9 students हो जाएंगे। I hope this is clear. That is how you read a Venn diagram, उसमें जो information होती है। आगे, how many are in both the teams? हाँ जी, how many are in both the teams? जी बेटा, so obviously in both the teams बेटा जो common है, जो दोनों टीम्स में कॉमन है, राइट। सो हाउ मेनी प्लेयर्स दे प्ले बेसिकली बोथ द स्पोर्ट्स, ठीक है, जो दोनों टीम्स में दे आर 5, इसमें कोई डाउट किसी को? सो बेसिकली इन दिस एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। हाउ मेनी आर इन बोथ द टीम्स? सो 5 आर प्लेइंग बोथ द स्पोर्ट्स। क्लैरिटी बेटा, ठीक है, 5 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बोथ द गेम्स। चलो सी बताओ, हाउ मेनी आर इन रग्बी टीम बट नॉट इन क्रिकेट टीम, ठीक है। हाउ मेनी आर इन रग्बी टीम बट नॉट इन क्रिकेट टीम? हाँ जी, सो दैट मीन्स ओनली रग्बी कितने खेल रहे हैं? ओनली 4 स्टूडेंट्स, ठीक है, आर इन रग्बी टीम बट नॉट इन क्रिकेट टीम। सो रग्बी कितने खेल रहे हैं? ओनली 4, ठीक है, ओनली रग्बी 4 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। क्लैरिटी, हाउ मेनी आर इन नीदर टीम? हाँ जी, सो जस्ट रीड द वेन डायग्राम। नीदर में बेटा ये बाहर लिखे हुए, दे आर पार्ट ऑफ दिस बैच अंडर years in year 10, बट ये जो बेटा बाहर नंबर लिखा हुआ है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स, ना रग्बी टीम का पार्ट है ना क्रिकेट टीम का। सो स्टूडेंट्स हु प्ले नीदर ऑफ द 2 स्पोर्ट्स, इट्स 20, जो दोनों टीम्स में नहीं है, इट्स 20, ठीक है। चलो, हाउ मेनी आर देयर इन ईयर 10? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ईयर 10? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अब जरा ध्यान से ऐड करो। स्टूडेंट्स दोस प्ले ओनली रग्बी, कितने? 4, ठीक है, ओनली रग्बी के 4 हैं। दो स्टूडेंट्स हु प्ले बोथ, 5। स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट, 2, एंड स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर ऑफ द 2 स्पोर्ट्स, 20, ठीक है बेटा।
सो ये कितना बन गया? 5 and 4, 9 and 2, 11 and 20, 31 students are there in this year 10 class, जिनका हम ये जिनका वेन डायग्राम जिसको रिफ्लेक्ट कर रहा है डेटा को. क्लैरिटी बेटा, दैट इज हाउ यू एड ओनली रग्बी, ठीक है, कॉमन प्लेयर्स ऑफ बोथ द टीम्स, ओनली क्रिकेट, ठीक है, एंड देन ऑब्वियसली नाइदर ऑफ द टू स्पोर्ट्स. सो बेटा इसका आंसर क्या आ गया? 31. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. सो बेटा एनी कंफ्यूजन्स, एनी एम्बिग्विटीज बेटा मुझे बताओ. I'll explain you that, ठीक है. So I hope this is clear.